Hello, students. Today we will discuss the topic that is the hydrogen. When we talk about hydrogen, ये सबसे पहला एलिमेंट है जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं. Yes. So with that, just discussing about the properties of the hydrogen. The symbol of hydrogen we all know is H. The molecular formula ये सब H. ये सब आप पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे, तो बेटर है कि आप ये फंडामेंटल्स क्लियर करते रहें. Molecular formula is H2, that is why it is also known as diatomic. Valency is 1, atomic number is 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 1 इलेक्ट्रॉन आता है. इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी रहती है. इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट. इट इज डायटोमिक इन नेचर, प्रेजेंट इन ऑल द एसिड्स, है ना. HCl जब पढ़ते हैं, H2SO4 पढ़ते हैं, तो इन सब में ये HNO3 पढ़ते हैं, तो प्रेजेंट इन ऑल द एसिड्स. And when we talk about hydrogen, what comes in our mind is in a free state where it is present and in combined state where it is present. So when we talk about the free state hydrogen जो present है वो हमारे अर्थ क्रस्ट में present होगी with different kind of traces in the elements. As for since जो भी सॉइल हो गया या वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, विद द कार्बन एलिमेंट्स जितना भी प्रेजेंट होगा वो हमारा हाइड्रोजन होता है. सन में ब्लास्ट ऑफ गैसेस होती है ना, ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. सो सन एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, है ना. न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ये एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जॉइन अप एंड फ्यूज टुगेदर इन द सन्स इंटीरियर, due to which that makes the sun shine. So, and it is usually colorless, odorless, tasteless, and weighs about nearby 1/14 as much as the equal volume of the air. इतना इसका relatively वे होता है. जब हम बात करते हैं वाटर की, तो यूजुअली सबसे अच्छा दिमाग में आता है कि वाटर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा in the preparation of the hydrogen. So, as for sense, hydrogen constitutes about 0.9% of mass of the earth crust and ninth element in the order of the abundance. Is the ninth in the order of their abundance. जब हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं, Robert Boyle was the one who was the first scientist in 1672 who actually get to know and measure this combustibility. But it was not given to him about whatever he actually discovered about hydrogen. It was Henry Cavendish who prepared this gas by preparing it with the iron and dilute acid, and he called it as inflammable. इसलिए हाइड्रोजन जो है वो बहुत लाइटर है और इनफ्लेमेबल एयर में पाई जाती है. सो उसको बहुत डेंजरस हो गया अगर हाइड्रोजन ऐसी फ्री स्टेट में हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाए. देन Lavoisier was the one who named, Anthony Lavoisier was the one who 1783 named it as hydrogen. तो तीन साइंटिस्ट रोल प्ले किया. कौन कौन? रॉबर्ट बॉयल जिसने कंबस्टिबिलिटी की मेजर की, देन हेनरी कैवेंडिश who studied its property as a gas and termed it as inflammable, and he also proved that this gas is a component of water. ये भी कैवेंडिश का रोल था. And Anthony Lavoisier named the gas as the hydrogen. And hydrogen, उससे नाम ऐसे दिया कि hydro means water and gin means producer, so water producer, so water former. Okay. Then coming to the preparation of hydrogen, हाइड्रोजन का सबसे कॉमन टॉपिक हमें H2O पता चलता है ना. जैसे ही वो कंपाउंड दिमाग में आता है, दैट इज दी H2O. तो एक्टिविटी सीरीज है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आपने पहले भी पढ़े हैं, हम उसकी जनरल मेथड्स की प्रिपरेशन के हिसाब से देखें तो जब हाइड्रोजन को वाटर के साथ में प्रिपेयर करेंगे तो यूजुअली वाटर जो 11% ऑफ मास वो हाइड्रोजन को कवर करता है, एंड इट इज द चीपर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. चीपर सोर्स है कि जिससे हम
हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सके। सो बाय एक्शन ऑफ द एक्टिव मेटल्स, ये सब एक्टिव मेटल्स हैं ऑन वाटर, क्या होगा? द मेटल विल डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशंस। देखो कंडीशंस भी डिफरेंट है, ये all they all have been given different conditions. As for sense, when sodium will react with water, this is sodium, you can write here, I have not written here. Sodium when react with water at room temperature, okay, just mention here room temperature, it will form sodium hydroxide in aqueous state as well as hydrogen in a gaseous state. That is why this sign is here. Then with the potassium also reacting with water, it will form 2KOH. Okay, that is caustic potash also हम बोलते हैं, ये hydroxide with the hydrogen involved होगा। Then with the calcium उसका reaction कैसे रहेगा? ऐसा नहीं कि कोई और element नहीं यूज करेंगे, cold water में कोई और भी element यूज करें, बस ये देखा जाएगा कि ज्यादा वो reactive ना हो। With the water forming calcium hydroxide with the water। अब हम जब बात करते हैं कि हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करा जाए तो क्या फॉर्म करेगा? When we talk that with the hot water, सबसे पहले मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवाते हैं विद द बॉइलिंग वाटर, लिक्विड स्टेट में हम इसको बॉइल करके उसकी जो फॉर्म करेंगे दैट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, नॉट हाइड्रोक्साइड। इन द बॉइलिंग स्टेट में जब हम फॉर्म करेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने ये गलत हो गया मेरे से, इट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO। ओके, फिर बाकी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड अगेन विद द हाइड्रोजन एज अ gaseous state, it will be a slow reaction। okay, ये slow reaction होगा। then when we talk about the तीसरा from the steam, steam में जब रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा? जब हम स्टीम में इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये मैग्नीशियम के साथ में जब रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा स्टीम के साथ में। जैसे जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, तो वहां पे जब मैग्नीशियम यूज किया विद वाटर तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ होता है। शायद इसलिए मैंने यहाँ पे रखा था कि व्हेन इट विल बी इन अ हॉट वाटर इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, हॉट में हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म कर रहा है, मैं सही थी। एंड व्हेन इट विल रिएक्ट विद द स्टीम, क्योंकि देखो स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा होता है कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है? स्टीम का ज्यादा होता है, सिर्फ स्टीम से ज्यादा जलते हैं। ओके, सो मैग्नीशियम विद वाटर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड विल बी फॉर्म विद द हाइड्रोजन रिलीज। देन विद द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑलवेज अट्रैक्ट, कभी भी एल्यूमिनियम देखा होगा उसके बाहर ब्लैकिश सी लेयर भी होती है, सो इट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द ऑक्सीजन। इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले करता है ये। So when aluminium react with the water at 800 degrees Celsius, we say that aluminium oxide is formed with the release of water. Then again, ये steaming condition की बात ही कर रहे हैं हम। When zinc reacts with water, it will form zinc oxide and water. एक चीज नोट करना, whenever steam is there, oxide will form. Okay, when steam is there, oxide will form. When cold water is there, hydroxide is formed. है ना? ये चीज ध्यान रखना कि स्टीम में क्या है। इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि राइट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इन कोल्ड वाटर या विद हॉट वाटर या फ्रॉम स्टीम। ओके, सो इस तरह से व्हेन जिंक विल रिएक्ट विद वाटर, जिंक ऑक्साइड विद द हाइड्रोजन रिलीज्ड एज अ गैस। सो ZnO का एक इंपॉर्टेंट क्या है? ZnO व्हेनेवर इट इज हॉट it is yellow in color and whenever it is cold it will be cold form, it will be white in color। ये इसका characteristics है, ठीक है। then when you talked about iron, red hot iron हमें लेना पड़ेगा, उसमें हम water अगर उसको रिएक्ट करवाते हैं it will form it and it will be also reversible reaction, that is iron ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड Fe3O4। ये कुछ चीजें तो आपको रोट लर्निंग ही करनी पड़ेगी बिकॉज लेटर ऑन यू विल गेट टू नो इन हायर क्लासेस दैट हाउ थिंग्स हैपन इन द रिएक्शन। till the time you haven't seen them reactivity in your labs, till then
आपको इसको रूट लर्निंग करना पड़ेगा. सो इट वॉज द प्रिपरेशन इन अ जनरल प्रिपरेशन. हमने किससे किया? फ्रॉम स्टीम से, यस, देन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड फ्रॉम द हॉट वाटर. ये हो गया, हमने हॉट, कोल्ड और स्टीम में जब रिएक्ट करवाया. फिर जब हम बात करते हैं कि फ्रॉम एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा. जब हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो दैट इज डाइल्यूट HCl या SO4. हम डाइल्यूट ही यूज करेंगे, हम कंसंट्रेटेड नहीं यूज करेंगे. उसका रीजन भी है, हो सकता है ब्लास्ट हो जाए या फ्री स्टेट में फॉर्म नहीं होता है हाइड्रोजन, इसलिए वो एक्टिव रहेगा. व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, एक सीरीज आपने पढ़ी थी ना, उसमें रिएक्टिव जो एलिमेंट्स थे उसमें से एक्टिव मेटल से पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोरीन एज एग्जाम्पल लिया है. व्हेन पोटेशियम रिएक्ट विद HCl, वो HCl के साथ में एसिड रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म KCl विद द हाइड्रोजन रिलीज फॉर्म. देन कनेक्टिंग विद द सोडियम, व्हेन HCl is reactive with sodium, it will form NaCl, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, NaCl with the H2. Same as calcium when reacting with HCl, it will form calcium chloride with the water. ये रिएक्शन आप खुद कर बना के देखना, अपने आप याद हो जाएगा. सो दिस इज फ्रॉम द एक्टिव मेटल से कैसे फॉर्मेशन. देन कुछ लेस रिएक्टिव मेटल से कैसा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की बात करते हैं हम. एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्टेड विद, मैंने यहाँ पे एक कॉमन सा ले लिया कि जब HCl से साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा एल्यूमिनियम का, इट विल फॉर्म AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड. व्हेन जिंक विल फॉर्म विद HCl, इट विल फॉर्म ZnCl2. व्हेन आयरन विल combine with HCl, it will form FeCl2. Same as with the H2SO4, when it will combine aluminum, it will form Al2SO4 3. ZnSO4 with zinc and with the iron it will form FeSO4. तो ये हुआ लेस रिएक्टिव के साथ में. फॉर एग्जाम्पल दे दिया एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. ठीक है जी. देन विद द एल्कलीज, व्हेन एल्कलीज व्हिच डिसॉल्व्स इन NaOH and COH, जब भी कोई ऐसा बोल दिया जाए कि एल्कलाई के साथ में रिएक्शन फॉर्म करो, तो वहां पे आपने बिल्कुल बिना सोचे समझे दिमाग में बस ये लेना है कि उसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल NaOH और KOH है. ठीक है, इन सब में गैस रिलीज हो रही है. ये मैंने प्लस ये लिखना. नो, नाउ विद द जिंक इफ रिएक्टेड विद NaOH, तो क्या फॉर्म किया, Na2ZnO2. इसको हम पढ़ेंगे सोडियम जिंकेट, है ना, विद हाइड्रोजन रिलीज्ड गैस. देन विद द लेड, सोडियम प्लम्बाइड. देन विद द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, है ना. इस तरह से ये रिएक्शन फॉर्म करेगा. ओके, बॉइलिंग स्टेट में बोल सकते हैं, या एक्शन ऑफ एल्कलाइज ऑन द मेटल्स, किस तरह से रिएक्ट करेगा तब ये फॉर्म होगा. सो अब हमने क्या क्या कर लिया. हमने ये किया कि हाइड्रोजन प्रिपेयर कैसे हुआ, हॉट वाटर के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में, और प्रिपरेशन उसकी स्टीम में कैसे फॉर्म हुई, हाइड्रोजन कैसे रिलीज हुई. देन वी टॉक्ड अबाउट कि उसको एसिड के साथ में रिएक्ट कराया जाए तो डाइल्यूट HCl H2SO4 के साथ में रिएक्ट करें, एक्टिव मेटल्स को, लेस रिएक्टिव वाले को, और अल्कलीज को. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, दिमाग में ये आता है कि व्हाई नॉट कंसंट्रेटेड एसिड एज वेल एज HCl, बिकॉज इट इज HCl इज वेरी वोलेटाइल. पहले तो HCl को हम कंसंट्रेटेड HCl को इसलिए नहीं होते, बहुत ज्यादा वैनिश, जल्दी वैनिश होता है, जैसे होता है ना अपना जैसे ही नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो एकदम से उड़ जाता है, तो सेम एज HCl इज वोलेटाइल. देन नाइट्रिक एसिड, व्हाई इट इज नॉट यूज्ड, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर. And why not HCl4 considered SO, because it will not use as it produces sulfate SO2 solution. ये हाइड्रोजन गैस नहीं लिखा है, इनफैक्ट ये सल्फर गैस या सल्फर ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा. सो लिटिल मोर अबाउट हाइड्रोजन, उसके अबंडेंस कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस कौन कौन से उसके डिस्कवर हुए, एंड प्रिपरेशन मैंने जनरल मेथड्स बताए हैं आपको. एक रिएक्टिव मेटल्स, 2-3 आप मेटल्स दिमाग में रख लो और उससे फॉर्मेशन रखो. कोल्ड वाटर, स्टीम वाटर, उसके क्वेश्चन इस तरह से ही बनते हैं, स्टीम में बताइए, कोल्ड वाटर में बताइए कैसे बनते हैं. सो इन नेक्स्ट आई विल गेट टू गो विद द प्रिपरेशन बाय द लेबोरेटरी मेथड एज वेल एज द इंडस्ट्रियल मेथड इन फैक्ट. ओके, थैंक यू. डू लाइक and subscribe my channel.